جلال کی طرف سے فوری طور پر کوئی جواب نہیں آیا۔ میرے بے ساختہ کلمات سے شاید اسے ذہنی جھٹکا لگا تھا۔ لمحہ بھر کے نہایت واضح سکوت کے بعد اس کی ٹھہری ہوئی اور دھیمی آواز ابھری، فکر نہ کرو، میں کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ تم کو جلاوطن شہزادہ نہ بننا پڑے۔ تم جلد از جلد ہمارے درمیان لوٹ آؤ۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ میرے اور بہت سے درد مند پاکستانیوں کے دلوں میں تمہارے لیے کتنی عزت ہے۔ ایک فرد کی حیثیت سے تم نے نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں۔ تم کچھ بھی نہ کرتے تو ہم راجن کے خاتمے پر ہمیشہ تمہارے احسان مند رہتے۔ تم نے راہ کے بڑے بڑے ستون گرائے ہیں، ان کا ایک زخم بھرنے نہیں پاتا کہ تم انہیں دوسرا گھاؤ لگا دیتے ہو۔ یہ ہماری خوش فہمیاں ہیں۔ دہلی میں نریش شرما اور انل بسواس مارے گئے تھے تو ہمارا خیال تھا کہ اب راہ کی کمر ٹوٹ جائے گی، پاکستان کے خلاف ان کی کارروائیاں ایک لمبے عرصے کے لیے مان پڑ جائیں گی، لیکن وہ آج بھی اسی طرح سرگرم عمل ہیں۔ میں نے ہلکی سی تلخی سے کہا، دراصل فرد اور ادارے میں یہی فرق ہوتا ہے۔ فرد ختم ہوتا ہے تو اس کا بنایا ہوا پورا شیش محل اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ اداروں میں فرد کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انل دہلی سے ڈوریاں ہلا رہا تھا، ساگر نے بینکاک میں راجن کا سہارا لے لیا۔ پاکستان کے خلاف ان کی سازشیں اور سرگرمیاں آج بھی جاری ہیں۔ ان کی نوعیت دوسری ہے۔ جو نیٹ ورک تم نے توڑا تھا، اس کا متبادل اب تک تیار نہیں کیا جا سکا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے پاس راجن کے بارے میں حساس اور خفیہ معلومات موجود تھیں جو میں تم کو بھی نہیں دے سکتا تھا۔ راجن ایک الگ اور بڑا مسئلہ تھا۔ وہ خود گیا، کوادر میں اس کے بھیجے ہوئے ایجنٹ بھی پکڑے اور مارے گئے، جو باقی رہ گئے وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ انشاءاللہ تم سے جلد ملاقات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی جلال نے فون بند کر دیا۔ میں نے کیا کچھ سوچا ہوا تھا۔ میں یہاں بینکاک میں شاپنگ کرنا چاہتی تھی۔ غزالہ نے فون بند ہوتے ہی حسرت زدہ لہجے میں کہا، یہ میرا وعدہ ہے کہ ہم بینکاک میں رکتے ہوئے جائیں گے تاکہ تم دل کھول کر اپنی خریداری کر سکو۔ آنے والا وقت کس نے دیکھا ہے؟ میرے دل میں ایک بات آئی اور میں نے آپ سے کہہ دی۔ یہاں اور کون ہے جس سے دل کی بات کی جائے؟ اس نے ادا سے اپنا سر جھٹک کر کہا، ایک دوسرے سے کچھ کہہ سن لیا جائے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ فکر نہ کرو، چند گھنٹوں کی بات ہے، پھر تمہاری چاہے تو تم سے آ ملیں گی۔ ویرا کی بعض عادتوں کو ناپسند کرنے کے باوجود اس سے تمہاری گاڑی چھینتی ہے۔ شام پارک میں ہونے والی پہلی ملاقات میں تم اس کے ساتھ الگ بیٹھ کر یوں راز و نیاز کر رہی تھی جیسے وہ تمہاری اکلوتی سہیلی ہو۔ اوہ، آپ نے یہ بھی نوٹ کر لیا؟ اس نے بے ساختہ ایک گہرا سانس لے کر کہا، عورتوں کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپس میں کی جاتی ہیں۔ میں آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ کی شوخی نے وہ بات وہیں ختم کر دی، مگر میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ پہلی فرصت میسر آنے پر اس کی خریداری کی خواہش کو پورا کرنے کا موقع اسے ضرور دوں گا۔ 4 بجے چوفان کی کال آ گئی۔ اس کی آواز اور لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت بری طرح الجھا ہوا اور بدحواس ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے یہ یاد دہانی کرانے کے لیے فون کیا تھا کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ٹھیک 6:30 بجے ہوٹل پہنچ جائے گا۔ اس نے زیادہ بات کی نہ میں نے چھیڑ چھاڑ کی کوئی کوشش کی۔ میری رضامندی پاتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ ہوٹل کا حساب کچھ اس طرح چل رہا تھا، ہر وقت ہمارا ایک دن کا کرایہ وغیرہ پیشگی جمع رہتا تھا۔ ہم کسی اطلاع کے بغیر رخصت ہو جاتے تو ہوٹل والوں کو کم از کم واجبات کی حد تک کوئی شکوہ نہ ہوتا۔ میں نے پیشگی جمع کرائی ہوئی آخری رسید کا جائزہ لے کر اسے طلب کر دیا۔ غزالہ نے پورے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اسے مصروف چھوڑ کر میں غسل خانے میں گھس گیا تاکہ بینکاک میں آخری پرتعیش غسل سے لطف اندوز ہو سکوں۔ 6 بجے ہم دونوں پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ ویرا کی طرح غزالہ بھی میک اپ کی عادی نہیں تھی۔ ڈان کی تقریب میں شرکت کے لیے اس نے زیادہ دھاریوں والا سوٹ زیبتن کیا جس میں اس کا نکھرا نکھرا سراپا بہت زیادہ دلکش لگ رہا تھا۔ میں نے ناگدانہ نظروں سے اس کا بھرپور جائزہ لیا، لیکن کوئی نقطہ تلاش نہیں کر سکا جس کے سہارے غزالہ کی شخصیت کو دبایا جا سکے۔ وہ شرابیوں اور زن پرستوں کا جشن تھا جہاں ذہنی کجروی کو مہمیز دینے کے سارے اسباب جمع کیے جانے تھے۔ مجھے فکر تھی کہ غزالہ وہاں آنے والوں کی بدنگاہی سے محفوظ رہ سکے۔ ڈان کے مہمانوں میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تو میرے لیے اپنی کھوپڑی پر قابو پانا دشوار ہو جاتا اور فرار کا منصوبہ پس پشت چلا جاتا۔ غزالہ میری تیز نگاہوں کا مدعا بھانپ کر مسکراتے ہوئے بولی، مجھے یوں گھور گھور کر نہ دیکھیں، میں نے دنستہ یہ سیاہ دھاریوں والا لباس پہنا ہے۔ رنگ اور ڈیزائن کے لحاظ سے یہی سب سے ہلکا تھا۔ میں وہاں خود کو سنبھال لوں گی، بس آپ اپنے غصے پر قابو رکھیے گا۔ غزالہ نے ہمارا ضروری اسباب ایک تھیلے میں سمیٹ لیا تھا جو شولڈر بیگ کی صورت میں آسانی سے اس کے شانے کی زینت بن سکتا تھا۔ کپڑے وغیرہ وہیں چھوڑ دیے گئے تھے کیونکہ ہم کوئی بڑا تھیلا لے کر ڈان کی پارٹی میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ چوفان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ہمارے اسباب کا تھیلا خاموشی سے مسروقہ کار میں منتقل کر دیتا۔ ہمیں بالکل نارمل انداز میں پارٹی میں شریک ہونا تھا تاکہ ڈان کو ہمارے عزائم پر کوئی شبہ نہ ہو سکے۔ 6:15 بجے ہم نے اپنے کمرے کا الوداعی جائزہ لے کر اسے خیر بات کہہ دیا۔ اپنے فلور سے ہوٹل کے دروازے تک مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر آنے جانے والا ہمیں غور سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے سنسنی خیز مارکے سر کیے تھے،
लेकिन किसी मुल्क से एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए फरार होने का वो पहला तजर्बा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं और आने वाले मराहिल के बारे में जहन में एक भौचाल सा आया हुआ था। हम अपने खौफ और वसवसों को अपने दिलों में छुपाए खरामा खरामा होटल से बाहर निकले तो दूर ही से चौफान की स्याह आकार नजर आ गई। वो अपने मामूल के मुताबिक मुकर्रर वक्त से चंद मिनट पहले ही आ पहुंचा था। कमर कार तक पहुंचने से चंद लम्हे पहले उसने नीचे उतर कर गजाला के लिए अदब से पिछली नशिस्त का दरवाजा खोलकर मुझे हैरान कर दिया। वो इन लोगों में से था जो अपनी या पराई किसी भी औरत की इज्जत नहीं करते, सिन्फ नाजुक को हर हाल में एक पुरतायुश खिलौना तस्वुर करते हैं। दरवाजा बंद करके उसने किसी मुस्ताद ड्राइवर की तरह अपनी जगह संभाली और गाड़ी तेजी से हरकत में आ गई। मास्टर, तुम्हारा सामान कहाँ है? उसने धीमी और सपाट आवाज में पूछा। सब होटल में छोड़ दिया। डान से आज़ादी के लिए ये कुर्बानी जरूरी थी, मैंने कहा। अच्छा किया, मैं यही सोच रहा था कि तुम पार्टी में थैला कहाँ लिए फिरोगे। क्या तुम इसे हमारी गाड़ी में नहीं डाल सकते थे? मैंने सवाल किया। मास्टर, तौबा करो, अब मैं भूल कर भी इस गाड़ी के करीब नहीं जाऊंगा। वो शानदार पजीरो है और वहां पहुंचाई जा चुकी है। बात करते हुए उसने अपना बायां हाथ कोट की जेब में डाला और चाबी निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसमें सब कुछ मौजूद है। टंकी भरी हुई है, फाजल कैन भी तेल से भरा हुआ है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैंने एहतियात से काम लिया है। आज मैं खुद को मुअज़्ज़ज़ समझ रहा हूँ। अपनी मादाम को पहली बार मेरी गाड़ी में बिठाकर तुमने मेरी इज्जत अफसाई की है। मैं तुम दोनों के लिए दुआ गो रहूंगा। चौफान, ये मादाम नहीं मेरी बीवी है, मैंने नरमी से कहा। मास्टर, तुम्हें औरत कहने पर एतराज था, मादाम तो इज्जत का लफ्ज़ है, क्या तुम इसे भी बुरा समझते हो? उसने मासूमाना हैरत से सवाल किया। यकीनन इज्जत का लफ्ज़ है, लेकिन तुमने इसे ली के लिए इस्तेमाल करके मशकूक बना दिया है। वो बिठंगेपन से हंसने लगा और पीछे मुड़े बगैर बोला, सद्दफ, तुम्हारा शौहर बहुत दिलचस्प और दलेर आदमी है, हर वक्त हाजिर दिमाग रहता है। पजीरों में गाड़ी के कागजात मौजूद हैं। मैंने गजाला के कुछ बोलने से पहले बात का रुख यकायक तब्दील कर दिया। रंग और नंबर प्लेट बदली हुई है, इसके मुताबिक कागजात की जाली फोटोकॉपियां भी रखती हैं। मुझे तवक्का है कि तुमको इनकी जरूरत पेश नहीं आएगी। थाई पुलिस कीमती और नई गाड़ियों को कहीं नहीं रोकती। मैंने यही सोचकर नई पजीरों का बंदोबस्त किया है। गाड़ी की सही धज कमजोर होती तो रास्ते में तुम कहीं भी मुश्किल में पड़ सकते थे। मुझे उसकी जुबान से यह जानकर खुशी हुई कि थाई पुलिस की ज़हनी सतह हमारी पुलिस से बुलंद नहीं थी। जाहो हशमत और सरवत व आबारत से वो भी फिलफोर मरऊब हो जाने के आदी थे। खुशपोश मुजरिम वारदात का इर्तिकाब करके बेश कीमत गाड़ी में आसानी से फरार हो सकते थे। खस्ता हाल गाड़ियों में सफर करने वाले बिला तकल्लुफ कहीं भी रोके जा सकते थे और जरूरत पेश आने पर मुश्तबा करार देकर बंद किए जा सकते थे। वो ज़िमनी खुशी थी। अहम तर बात यह थी कि चौफान ने हमारे फरार के मंसूबे पर खासी बारीकी के साथ काम किया था। पजीरों का बंदोबस्त देख के एक चावल की तरह उसकी नेक नियति की गुमाजी कर रहा था। मैंने सारे मनफी ख्यालात उसी लम्हे अपने जहन से झटक दिए। चौफान के बारे में अंदेशे दूर होते ही मुझे तकवीयत और तवानाई का एहसास होने लगा। चौफान, मैं तुम्हारा ममनून हूँ, मैंने पुरखुलूस लहजे में कहा। मैं जिंदगी भर तुम्हारे इस ताउन को फरामोश नहीं कर सकूंगा। मास्टर, मुझे शर्मिंदा ना करो, तुम्हारे भाग जाने में तुम्हारे साथ मेरा भी फायदा है। तुमने मुझे ये रुख ना समझाया होता तो मैं मर कर भी डान की मर्जी के खिलाफ कोई कदम ना उठाता। आखिरी सफर में साफगोई से काम लेकर उसने मुझसे ज्यादा गजाला को हैरान कर दिया। इसके बावजूद तुम हमारे मोहसिन हो। गजाला बोली, तुम्हारे ताउन के बगैर हम यहाँ से निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अब भी यह मरहला आसान नहीं है। चौफान मतानत से बोला, गाड़ी में इस इलाके का एक बड़ा नक्शा रखा हुआ है। मैंने सुर्ख कलम से तुम्हारे रास्ते की निशानदही कर दी है। बैंकॉक से निकलने के बाद रास्ता कच्चा पक्का और खराब है। तुम भटक गए तो फिर अल्लाह ही तुम्हारा मुहाफिज होगा। तुमने अपनी से यार कोशिश कर ली है, अब कोई गड़बड़ होती है तो वह हमारा मुकद्दर होगा। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, बैंकॉक से निकलने के बाद तुम कदम कदम पर याद आते रहोगे। तुम्हारा सफर दुरुस्त समत में जारी रहा तो तुम सूरज निकलने से पहले कंबोडिया में सिसुफून के सरहदी कस्बे में दाखिल हो जाओगे। वो पुरख्याल आवाज में बोला, वहां तुम्हारी कमी बुरी तरह महसूस होगी। मैंने सोचे समझे अंदाज में गुफ्तगू का रुख बदला। कंबोडिया की जुबान से नवाकफियत हमारे लिए अजाब बन सकती है। वो पसमानदा मुल्क है, गुर्बत और जहालत आम है। वहाँ नौम पनाह से बाहर अंग्रेजी जानने वाले बहुत कम मिलेंगे। कोई भी मुश्किल दरपेश हो तो बेदरेक डॉलर या मकामी करेंसी इस्तेमाल करना। गुर्बत की वजह से लोग खासे लालची हैं। चौफान ने अपने तजर्बात का निचोड़ बताया, तुम वहाँ आते जाते रहते हो, क्या ये मुमकिन नहीं कि हमें किसी कारामद आदमी का पता वगैरह दे दो, हम इसको मुंह मांगा मुआवजा देंगे। मास्टर, क्या कह रहे हो? वो खौफजदा आवाज में बोला। ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकेगी कि मैंने 2 गैर मुल्कियों को वहां किसी के पास भेजा था। मैं डरते डरते डान के एतमाद को धोखा दे रहा हूं, लेकिन इसके गैज़ो गज़ब का सामना नहीं कर सकता। इस इलाके में मेरे 10 शनासा हैं, मगर मैं तुमको किसी के पास नहीं भेज सकता। तुम ना भेजो, मुझे सिर्फ नाम, पता और फोन नंबर दे दो। मैं लजाजत से कहा,
मैं तुम्हारा नाम लिए बगैर इससे राब्ता करूंगा। इस रकम मिलेगी तो वो ज्यादा पूछगछ नहीं करेगा। मास्टर तुम क्यों इस तरह बात कर रहे हो? मैं जमीन में गड़ा जा रहा हूँ। इस वक्त तुम जमीन पर नहीं अपनी कार में हो। तुमने इतना बड़ा खतरा मोल लिया है तो थोड़ी सी हिम्मत और कर डालो। यकीन रखो कि तुम्हारा नाम दरमियान में नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता, उसने अटल लहजा में कहा। तुम इन इलाकों के रवाज से नवाकिफ हो। वहां हवाले के बगैर कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जो भी मिलेगा सबसे पहले यह जानना चाहेगा कि तुम्हें किसने इसके पास भेजा है। नाम शनासा हुआ तो वो तुम्हारा खादिम साबित होगा, वरना वो रुखाई से तुम्हारी सारी जमा पूंजी लूटने का मंसूबा बनाने में मसरूफ हो जाएगा। और यह भी आसान है। मेरे ज़हन में बरमहल एक तजवीज़ आ गई। तुम अपने किसी हरीफ का नाम बता दो जो इस इलाके में पहचाना जाता हो। बात खुलेगी तो तुम्हारे बजाय वो डान के अताब में आ जाएगा। तुमको अपने एक दुश्मन से निजात मिल जाएगी। मास्टर तुमने नहायत आला दर्जे का हराम मगज पाया है। उसे बेसाख्ता कहा और मैं भूंज कर रह गया। मेरे हराम मगज का क्या जिक्र निकल आया? मैंने हैरत से पूछा। मैंने लड़कपन में अपने गांव के हकीम से सुना था कि इंसान की रीढ़ की हड्डी में छुपा हुआ हराम मगज सारी ज़हनी सलाहियतों को कंट्रोल करता है। तुम इतनी फुर्ती से हर मुश्किल का हल पेश कर देती हो कि मुझे तुम्हारे हराम मगज पर रश्क आने लगता है। अब कभी अपने गांव की तरफ जाना तो इस हकीम को गोली मार देना। हराम मगज दिमाग का हाकिम नहीं, ताबे होता है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। ऐसे नीम हकीम अपने अनोखे फतवों से लोगों को गुमराह करते हैं। ये बताओ कि मेरी तजवीज़ के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मेरे जहन में फोम फाट का नाम आ रहा था। इसने झिझकते हुए कहा, वही ली का मालदार आशिक जो तुम्हारे हाथों पिटा था? मैंने तस्दीक चाही। वो छोटा राजन का हाशिया बरदार था। अभी उसके कसबल बाकी है। नशे में डूब जाता है तो मादाम को बार बार फोन पर तंग करता है। मैंने महसूस किया कि गाड़ी में गजाला की मौजूदगी की वजह से चौफान ने संभल संभल कर वो वजाहत पेश की। परसों तुम ली से बेजार थे क्योंकि अब वो तुम्हारे पीछे लगी रहती है। अब क्यों उसे हमदर्दी कर रहे हो? वो खुद फोम फाट से निमट लेगी। मैंने कहा, मास्टर तुम्हारी बीवी की वजह से मेरी जुबान बंद है। मैं क्या बताऊं कि वो कमीना कैसा ब्लैकमेलर है। धमकियां देता है कि मादाम के काबिल एतराज पोस्टर शहर की सारी दीवारों पर लगवा देगा। तुम्हें मालूम है कि भौंकने वाले कुत्ते काटा नहीं करते। मास्टर ये ना कहो, अब कभी कभी काट लेते हैं। जमाना बदल गया है, मुहावरे गलत साबित होते जा रहे हैं। वो हसरत ज़दा आवाज में बोला, अब तुम्हारा वक्त आ गया है, किसी भी वक्त इसे घेर लो। अब वो छुपता फिर रहा है। मैंने बताया ना कि मादाम के घर के चक्कर लगाने के बजाय वो फोन करने लगा है। मुझसे कहाँ पकड़ूं? बस तुम्हारी तजवीज़ दुरुस्त है, इसका नाम इस्तेमाल कर डालो। मेरी शिकायत पर डान कान नहीं धरेगा। तुम्हारे चक्कर में इसका नाम सामने आएगा तो डान गजबनाक होकर इसका खून पी जाएगा। चौफान ने मेरी मर्जी का फैसला सुना दिया। यह अजीब बात हो रही है कि मेरे फायदे में तुम्हारा फायदा हो रहा है। तुमको कंबोडिया में मददगार मिल जाएगा। फुमफाट से मादाम की जान छूट जाएगी। चंद दिनों में इस खबीज ने मादाम को जिज कर दिया है। तो मुझे सीसू खून वाले आदमी का नाम पता दे दो, मैं फुमफाट के क्रियाक्रम का बंदोबस्त कर दूंगा। मैंने उसे दिलासा दिया। गाड़ी शहर की हदूद से बाहर आकर कुशादा सड़क पर बहुत तेजी से रवां थी। बैंकॉक में वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद कहीं राजो न्याज की बातें करने का मौका नहीं मिल सकता था। चौफान ने रफ्ता रफ्ता गाड़ी की रफ्तार कम करते हुए उसे सड़क के किनारे रोक दिया। गाड़ी की केबल लाइट जलाकर उसने डैशबोर्ड के खाने से एक मुड़ी तुड़ी जेबी टायरी निकाली और उसकी वर्गर्दानी करने के बाद इसी में से एक सफ़ा फाड़कर इस पर अंग्रेजी में अपने कम्बोडियन शनासा का नाम और फ़ोन नंबर लिखकर वो कागज़ मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे एहतियात से रख लो। ये याद रखना कि वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता है। धीमी और आसान जुबान में बात करोगे तो वो सब समझ जाएगा, वरना मुश्किल होगी। बेफिक्र रहो, मैं उसे संभाल लूंगा। मैंने उसका दिया हुआ कागज़ तय करके अपनी जेब में रख लिया। इसके ताउन से मेरे मसाइल एक एक करके हल होते नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद हवा में मखसूस समंदरी बू के गहरे रचाव से अंदाजा हुआ कि हम साहिली इलाके के करीब पहुंच गए थे। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा, लेकिन मुझे बंदरगाह की तेज रोशनियां और इस रोशनी में हरकत करते हुए क्रेनों के बुलंद फौलादी ढांचे कहीं नजर नहीं आए। मास्टर, अंधेरे में किसे तलाश कर रहे हो? चौफान ने मेरी बेचैनी भांप कर पूछा। शायद हम समंदर के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन बंदरगाह कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने दूसरा रास्ता लिया है, बंदरगाह पीछे रह गई है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि डान की पार्टी एक साहिली वीराने में होगी। हम इसी तरफ जा रहे हैं। खुले साहिल पर किसी पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का बंदोबस्त बहुत मुश्किल साबित हुआ होगा। मास्टर, तुम्हारा खादिम नामुमकिन को मुमकिन बनाने में माहिर है। उसने शेखी पे गाड़ी। सारा बंदोबस्त मिसालिक है। जरा सी देर में तुमको जंगल में मंगल होता हुआ नजर आएगा। हमारी गाड़ी गालबन साहिल के मुतवाजी दौड़ती रही। पहाड़ियों और टीलों की वजह से समंदर हमारी नजरों से ओझल था, लेकिन फिजा समंदर से कुर्ब की चुगली खा रही थी। चंद मिनट के बाद हमें तारीख फिजा में ऊपर तक रोशन गुबार सा फैला हुआ नजर आने लगा, जो तेजी से वाजे होता जा रहा था। मास्टर, ये आसमान तक चमकती हुई रोशनी देख रहे हो ना? आज की पार्टी लोगों को मुद्दतों याद रहेगी। 2 देव हैकल मोबाइल जनरेटरों ने इस वक्त साहिली पट्टी को बकाए नूर बनाया हुआ होगा। खाने पीने का सारा तैयार सामान रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में मंगवाया गया है।
शराबें यकबस्ता और खाने भाप उड़ाते हुए सर्व किए जाएंगे, जैसे भी चूल्हों और तंदूरों से उतारे गए हों। 150 मेहमानों की खिदमत के लिए 81 लड़कियां बुलाई गई हैं। रेत पर जमा हुआ पंडाल परस्तान का समा पेश कर रहा होगा। इस दौरान में तकरीब गाह का नक्शा वाज़ेह होना शुरू हो गया। हमारे दाहिनी समत में समंदर की सर पटकती हुई मौजों से कुछ दूर कैमे नुमा बड़ा सा पंडाल रोशनियों से जगमगा रहा था। इससे कुछ पीछे सड़क के किनारे कई बंद ट्रक जैसे कारवां एक कतार में खड़े हुए थे। कुर्बजवार में फैली हुई तेज रोशनी वो मंजर बहुत ख्वाबनाक नजर आ रहा था। चौफान पंडाल के करीब से तेजी से गुजरता चला गया। पंडाल के बाद ही रेत को हमवार करके गाड़ियां पार करने की जगह बनाई गई थी, जहां हमसे पहले मुतअद्दिद गाड़ियां मौजूद थी। पहली कतार में चौथी गाड़ी गौर से देख लो। चौफान ने पार्किंग के लिए गाड़ी घुमाते हुए कहा, तुमको इसी पजीरों में निकलना है? क्या अभी से इतने मेहमान आ गए हैं? मैंने वहां खड़ी हुई गाड़ियों की तादाद देखकर हैरत से सवाल किया। पजीरों हर तरफ से गाड़ियों में घिरी हुई है। इसे मैंने दानिस्ता ऐसी जगह पार किया है जहां रोशनी कम है, ताकि गाड़ी गैर जरूरी तौर पर किसी की नजरों में ना आ सके। इसने अपनी गाड़ी एक जगह रोक कर कहा, ये गाड़ियां यहाँ के काम करने वालों और हमारे आदमियों की हैं। कुछ लड़कियां भी अपनी गाड़ियों में आई हुई हैं। सारे मेजबानों को मेहमानों की आमद से पहले यहाँ जमा होना है। डान कब आएगा? मैंने गाड़ी से उतरते हुए सवाल किया। वो ठीक 9 बजे पहुंचेगा। कोई बात रह गई है तो पूछ लो, तुमको अंदर पहुंचाने के बाद मैं मसरूफ हो जाऊंगा। तुम्हारी तरफ आना हुआ तो कोई खास बात नहीं हो सकेगी। पार्टी शुरू होने में देर थी, लेकिन फिजा में मुतरन्नम कह के गूंज रहे थे। रेतीले पार्किंग लाट से निकलते हुए चौफान तानिस्ता चापजीरों के करीब से गुजरा और मैंने अंदाजा लगा लिया कि पार्किंग में किसी बेतरतीबी के बावजूद पजीरो दूसरी समत से बासानी निकाली जा सकेगी। वसी पंडाल सड़क और दोनों पहलुओं से पूरी तरह बंद था। इसका तूलो अर्ज देखकर मैं हैरान रह गया था कि 150-200 मेहमानों के लिए इतने रकबे की जरूरत क्यों पेश आई। चौफान जूं ही सड़क पर आया, मुख्तलिफ समतों से मर्द और औरतें नमोदार होकर उसे ताजीम देने लगी। बाज का अंदाज बहुत ज्यादा बेतकल्लुफाना था, मगर इनकी बेतकल्लुफी में भी चौफान की बालादस्ती का एतराफ छलक रहा था। वो इन सबसे हंसता बोलता किसी न किसी के साथ दस्तराजी करता हमारे साथ आगे बढ़ता रहा। खाने की 2 गाड़ियां सड़क पर पंडाल के अकबी हिस्से के साथ खड़ी हुई थी। दोनों जनरेटर कुछ फासले पर खड़े किए गए थे ताकि इनका शोर महफिल की शुराका की समात पर बोझ न बने। एक जनरेटर चल रहा था। चौफान ने बताया कि इसकी किसी गैर मुतवक्का खराबी के अंदेशे से दूसरा जनरेटर तैयार किया गया था ताकि महफिल में कोई बदमज़गी पैदा न हो। इस वीरान साहिली इलाके में नजर आने वाली लड़कियों के लिबास इश्तियाल अंगेज हद तक मुख्तसर थे और वो चलते फिरते हुई शौकी से अपने जिस्मानी खदोखाल को मजीद फाजे करने पर तुली हुई थी। जिन लड़कियों ने पूरा लिबास पहना हुआ था, उन्होंने बतौर खास ये एहतमाम किया था कि लिबास इनके बदन के किसी जावियों की शिकनों में मादूम न करने पाए। हम दोनों चौफान की मायत में पंडाल के सिरे पर पहुंचकर सड़क से उतरे तो कदमों में रेत की जगह दबेज कालीन बिछे हुए थे। कालीनों की इस रवि से हम सामने पहुंचे तो वसी और आरीज पंडाल का वह हिस्सा पूरा खुला हुआ था, यानी इस पार्टी की शुराका अपनी जगहों पर बैठे बैठे खुले समंदर का भरपूर नजारा कर सकते थे। रेत में गड़े हुए ऊंचे पाइपों पर सर्च लाइटों की पूरी कतार लगी हुई थी, जिसका रुख समंदर की जानिब था। इन रोशनियों में झाग उड़ाती और फिर दम तोड़ती हुई समुद्री लहरें सफेद और स्यार रंगों में होलनाक शबीहें बना रही थी।